everyone. Good morning, children. How are you all? I hope you all good. So, today we are going to start lecture number 5 of chapter 11. So, come to the chapter number 11, that is Indian Judiciary, page number 86. Yes, Indian Judiciary. So, we had done almost 4 lectures of this chapter, and we had learned about the Indian judiciary, some topics. In lecture number 1, we had learned about the importance of judiciary, then the pyramid hierarchy of Indian judiciary system, and apex court and qualification required for the becoming a judge of the Supreme Court. Okay. Then in second lecture we had learned about the time periods, then how to appoint Chief Justice of Supreme Court, and also how to remove of judge. Then the power and jurisdiction of Supreme Court, and the first one is the original jurisdiction. So what is original jurisdiction? Which type of conflicts are resolved by Supreme Court? That all we have learned in that lectures. Then in lecture number 3, we have learned about the appellate jurisdiction. In appellate jurisdiction, there are 3 types of appeals can be made, like cases of constitutional interpretation, appeal against the civil cases, and appeal against the criminal cases. Then advisory jurisdiction and the other powers, right? Then in the last lecture, that is the lecture number 4. In lecture number 4, we have learned the High Court, Court of Records, then how to form a High Court, then हाई कोर्ट्स के जो चीफ जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है, तो वो सब हमने ये फॉर्मेशन में अच्छे से किया था. नाउ क्वालिफिकेशन required for the becoming a judge of high court. So first one should be see, this is the revision of last 4 lectures. So हम थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, वो हम डिटेलिंग से स्टार्ट करेंगे. बट अभी तो हम क्या है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं. तो लास्ट लेक्चर का रिविजन है फॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट. So first we revise the qualification. So as per the provision of constitution, the person eligible to be appointed to the high court, first one should be a citizen of India. एक तो वो citizen होना चाहिए. Should have served for minimum period of 10 years on any of the judicial post in lower court of Indian state. Then should have at least 10 years of the practice as an advocate in high court, or should be a distinguished jurist or a constitutional expert or a famous lawmaker as per the opinion of the president, and should be below a 62-year of age, whereas in a Supreme Court Chief Justice 65-year of age. That is the difference between Supreme Court and High Court's qualification, right? उसमें 65 ईयर है एज लिमिट और इसमें 62 है. Then the judge of the High Court has to take the oath of the secrecy in front of governor of the state or any person appointed by the governor and sign the corresponding pledge. Yes. So Chief Justice of the High Court, how he appointed? How he was appointed? I explained in last lecture, remember? So he is appointed by the president in the consultation with the Chief Justice of Supreme Court and also the governor of respective state. A president is representative of the prime minister and cabinet minister, and hence only the president appoints the chief justice only after the discussion and the consultation with the prime minister and the cabinet minister. Clear? Yes. So you done the whole revision. हमने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर से जस्ट हाइट पॉइंट्स मीन्स जो मेन टॉपिक का नाम था वही कवर किया है, बिकॉज हम एवरी लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर का है वो अच्छे से रिवीजन करते हैं. सो नाउ इट
is not needed to revise the lecture number 1 or 2 and 3 all. So we just revised the last lecture and now we start the new topic, that is the jurisdiction of High Court. Yes, here. So the first one is the original jurisdiction, second one is the appellate, and the third one is the administrative jurisdiction. There are three jurisdiction in High Court. So first one, original jurisdiction. Yes. Under the original jurisdiction, the High Court is empowered to issue direction, orders, or writ, both are the same, including the writs in the nature of habeas corpus to any person. You know the habeas corpus? See, हमने यहाँ पे स्टडी किया था. Just a second. In chapter number 8 और 9 और 10 में हमने किया था. What is the meaning of habeas corpus? कहाँ गया पेज? Just a minute. Yes. So हम पहले से स्टार्ट करते हैं. Original jurisdiction. Under the original jurisdiction, the High Court is empowered to issue the direction, orders, or writs, authority, and any government in case of violation of fundamental rights of citizen. मीन्स कोई भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, और कोई भी ऑर्डर्स और कुछ भी प्रोविजंस वगैरह हो उनका ब्रीच हुआ हो, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन कि वो डायरेक्शन ले सकता है, ऑर्डर कर सकता है, कुछ भी. ओके, मीन्स वो डायरेक्ट डिसीजन उनके ऊपर दे सकता है पर्टिकुलर इनके रिलेटेड जो भी केस हो वो. So the High Court has the authority in the case related to the company's marriage, divorce and alimony. So High Court में which type के cases है वो उनके related cases solve होते हैं. So related to the companies, then marriage, divorce and alimony. So the cases of the contempt of the court, land revenue and its reimbursement, land reforms, return can also be carried out in the High Court. जो भी केस लैंड रिलेटेड हो, जैसे कि भाई लैंड की रेवेन्यू है, जैसे लैंडर और टेनेंट के बीच में होता है, राइट, कि कोई पर्सन है चाहे कि जैसे कि वो ज़मींदार है और वो अपनी जो लैंड है वो किसी को वर्क करने के लिए सिर्फ यूज करने के लिए देता है, तो एट दैट टाइम लैंड रिफॉर्म्स, देन उनका जो रिटर्न मिलता है, उनकी जो रेवेन्यू है, उनके रिलेटेड जो भी केसेस हो वो हाई कोर्ट में सॉल्व होते हैं. All writ petition challenging the judgment given by the lower court of the civil and the criminal court can be made in the high court. लोअर कोर्ट में जो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस आते हैं वो सब कहाँ पे सॉल्व होते हैं? हाई कोर्ट में. अगर लोअर कोर्ट में उनको सेटिस्फेक्शन ना मिला हो then only. This petition challenging the provision provided in the entrance examination. Right? See, original jurisdiction of High Court and Supreme Court both are totally different, right? जो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिडिक्शन था वो टोटली डिफरेंट था, वो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड था, और ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट का है और वो भी टोटली डिफरेंट है और ये हाई कोर्ट के रिलेटेड है. तो आपको दोनों का अलग से याद रखना है, इनका इसमें या दोनों का मिक्स ना हो जाए, ठीक है. सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, आई होप नाउ यू ऑल द क्लियर अबाउट दिस कि भाई अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो हाई कोर्ट है उनके पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर इश्यू कर सकता है, किसके रिलेटेड, तो कि भाई कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी थ्रू या कोई किसी और के थ्रू भाई जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के उनका वायोलेशन हुआ हो तो वो इश्यूज़ में. और हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है तो वो किस टाइप के केसेस के लिए, तो रिलेटेड टू द कंपनीज हो, मैरिज रिलेटेड हो, डाइवोर्स केसेस हो, उनके रिलेटेड है. वेर इज अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखना चाहे तो उसमें क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट टू स्टेट, गवर्नमेंट टू स्टेट, स्टेट और स्टेट्स, राइट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ
केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होते हैं, और हाई कोर्ट में भी डिफरेंट टाइप के केसेस सॉल्व होते हैं, तो बोथ आर टोटली डिफरेंट। सो मिक्स मत करना एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड वन इज द appellate jurisdiction. So, under the appellate jurisdiction of the High Court, the court hear the petition against the civil and criminal cases. See, appellate jurisdiction में क्या है, हाई कोर्ट में दोनों टाइप की हियरिंग होती है, सिविल केसेस की भी और क्रिमिनल केसेस की, और उनके अगेंस्ट में हाई कोर्ट है वो जो भी सॉल्यूशन है, जो भी जस्टिस है वो करती है। एनी पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कैन बी मेड इन हाई कोर्ट in case the session court has issued any judgment punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in high court. अगर सेशन कोर्ट में अगर कोई केसेस के अगेंस्ट में 4 years या उनसे ज़्यादा कोई पनिशमेंट वगैरह का जजमेंट लिया गया हो, तो जो पर्सन है जिनको सज़ा, जिनके लिए पनिश मीन्स इश्यू की गई, ऑर्डर दिया गया है, वो पेटिशनर है, वो हाई कोर्ट में जाके वो जजमेंट के खिलाफ उनके अगेंस्ट में केस कर सकता है। जैसे कैसे हाई कोर्ट में अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ऐसे अगर आपको कोई लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट में अगर जस्टिस ना मिले और अगर आपको लगे कि नहीं ये इनजस्टिस है, तो आप हाई कोर्ट में वो जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो। If any accused is given a capital punishment by the session court in case of murder for which a less severe punishment is issued by the lower court, then in such a condition the judgment can be challenged in high court. अगर कोई मर्डर वाला केस हो, क्रिमिनल केस हो, और उसमें भी अगर लोअर कोर्ट थ्रू कोई पनिशमेंट इश्यू की गई है और कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है, तो वो केसेस भी आप उनके जजमेंट के चैलेंज में भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। सो द petitioner who is unsatisfied with the judgment of the tribunal can also approach a high court. सो जो भी पर्सन, जो भी पेटिशनर अनसेटिस्फाइड हो ट्रिब्यूनल के जजमेंट से, तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। फिर अगर हाई कोर्ट में भी उनको सेटिस्फेक्शन ना मिला हो, अनसेटिस्फाइड हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे। ये पूरी चैनल है। सबसे पहले नीचे अगर आपको लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट। स्टिल इन हाई कोर्ट you not satisfied with the judgment of high court, then you can go into the supreme court. So the high court has the power to decide upon the important questions pertaining to the law, including the constitutional interpretation. Constitutional interpretation related cases, questions वगैरह वो उन उनके रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना हो, जो भी जजमेंट देना हो, वो भी हाई कोर्ट के पास पावर है, बट एक स्टेट लेवल तक, उनसे ज़्यादा नहीं, राइट। सो अपेलेट जुरिडिक्शन में क्या था, तो उसमें क्रिमिनल और सिविल केसेस रिलेटेड जो कोर्ट हियरिंग्स होती है वो हाई कोर्ट में होती है, और जो ट्रिब्यूनल और लोअर कोर्ट में कोई पेटिशनर को ऐसा लगे कि भाई उनके जजमेंट के साथ वो एग्री नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो केसेस भी अपेलेट जुरिडिक्शन अंडर द अपेलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट में सॉल्व होते हैं। ओके, क्लियर? What is the appellate jurisdiction of High Court? Good. So here we done two jurisdiction. The first one is the original jurisdiction and the second one is the appellate jurisdiction. So I hope now we all clear about the original jurisdiction and appellate jurisdiction, and also you all clear about the difference between both the jurisdiction of High Court and Supreme Court. See, दोनों बहुत different है. So again I tell you कि please mix मत करना. Okay. Now you have 1 minute for original jurisdiction and 1 minute for appellate jurisdiction. Just read it and go through, and then we'll come to the next point, that is the administrative jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट में क्या है, टू द पॉइंट है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसमें थोड़ा पैराग्राफ है, तो आपको अपने आप पैराग्राफ में से 3 to 4 पॉइंट्स याद करने कि भी कौन से आपको इजी लगते हैं। ओके, first you read the original jurisdiction and then appellate jurisdiction.
ओके डन. Good. So come to the third point, that is administrative jurisdiction. You have still 10 to 15 seconds left. अगर किसी को बाकी रह गया हो तो वो जस्ट रीड कर लो appellate jurisdiction. 10 to 15 seconds है आपके पास. Then we'll start the administrative jurisdiction. जिसका हो चुका है रीडिंग वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीड करो जस्ट. ओके डन. गुड. चलो. Administrative jurisdiction. Each High Court has authority and power to supervise the working of all subordinate courts. सी भी हमने जो स्टार्टिंग में पूरा पिरामिड में एक हायरार्की देखी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन ट्रिब्यूनल, देन लोअर कोर्ट्स, राइट. तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल कोर्ट है, राइट, उनका जो वर्क है, वो जो वर्क कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना किसका काम है? हाई कोर्ट का. उनके पास वो अथॉरिटी है. हाई कोर्ट इज द अथॉरिटी एंड पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स and tribunal of state or its region. So if High Court feel it is necessary, then it can ask the case papers from the subordinate court. अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि कोई पर्टिकुलर केस में ऐसी ज़रूरत है कि भाई सबऑर्डिनेट केस जो कोर्ट है उन्होंने जो वर्क किया है उनके पास से वो पेपर्स ले और थोड़ा जस्ट रीड करे और थोड़ा देखे कि भाई क्या केस था, क्या नीड है आगे, कौन सी प्रोसीडिंग उसमें यूज हुई, तो वो इजीली सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास वो पेपर के लिए डिमांड कर सकता है. उनके पास ये अथॉरिटी और पावर है, राइट. सो इफ इट फील कि इट इज़ नेसेसरी, देन इट कैन आस्क द पेपर्स फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड देन carry out the case proceeding. And the court can frame the general laws to control the procedure and functioning of the court under its power. उनके पास जो अथॉरिटी एंड पावर है उनके अंडर में रह के वो पूरी प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है फंक्शंस को, और ये भी उनको ध्यान रखना है कि जो भी जनरल लॉज हैं उनको फ्रेम करें. एंड द हाई कोर्ट कैन डिसाइड द क्राइटेरिया एंड द टेबुलर फॉर्म ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ फीस. और जो भी रिलेटेड केसेस होते हैं डिफरेंट, जैसे कि डाइवोर्स केसेस होते हैं, मैरिज केसेस होते हैं, तो इसमें तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस इंक्लूड है हाई कोर्ट में. तो उनके लिए जो एक फीस स्ट्रक्चर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो भी हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है. एंड ऑल दिस प्रोविजन शुड बी अकॉर्ड एंड हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सब कहाँ से डिसाइड हुआ है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब टाइप की प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस सब दी गई है, राइट. सो दिस टाइप ऑफ ऑल द प्रोविजंस शुड बी प्रोवाइडेड बाय द constitution. And the High Court can guide and direct the subordinate court in the matter of the maintaining records and entries. Like सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि आप ये रिकॉर्ड्स ऐसे मेंटेन करना है, ये एंट्रीज ऐसे करनी है. लाइक दिस High Court guide and direct the subordinate court in the matter of maintaining records. And the High Court occupies the place as a court of records. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि व्हाट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. तो जो भी केसेस है उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रिकॉर्ड करना है एक प्लेस, दैट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. सो हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑक्यूपाइड करता है. एंड ऑल्सो इट पब्लिशेस इट्स जजमेंट डिसीजन इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. एक फॉर्म जो रेडी किया होता है उसमें उनका जो जजमेंट, जो भी डिसीजन है वो पब्लिश्ड होता है. दिस जजमेंट एंड डिसीजंस आर बाइंडिंग एंड फाइनल फॉर दे कैन यूज्ड this court decision and judgment as a reference by taking the decision on the various cases in future. तो हाई कोर्ट में जो जजमेंट, जो डिसीजन लिया गया है वो उनसे बाइंड है और फाइनल होता है कि आगे जो भी केसेस हो फ्यूचर में और अभी भी जो हुआ है उनके रेफरेंस में वो यूज़ होते हैं. जैसे कि अगर कोई न्यू केस आया है कि जो आज तक नहीं आया था, तो उनके लिए कुछ न्यू प्रोविजंस, न्यू रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट. तो फिर वो जो भी जजमेंट आएगा, जो भी डिसीजन लेंगे हाई कोर्ट, वो जजमेंट को, वो डिसीजन को वो फ्यूचर में भी यूज कर सकते.
when any case related to this case come in future. अगर फ्यूचर में कोई इसके रिलेटेड केस आए तो उसमें भी वो ये जजमेंट और डिसीजन है वो उनको रेफरेंस के लिए यूज करना होता है. सो द जजमेंट एंड द डिसीजन आर द बाइंडिंग एंड द फाइनल फोर दे कैन यूज दिस कोर्ट. So the lawyers use this published judgment and decision as a situations. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे situations है while pleading their case. तो फ्यूचर में जो लॉयर होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के केस में ये सब जजमेंट और डिसीजन है वो एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं. सो द कोर्ट हैज़ अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. और हाई कोर्ट के पास पनिश करने का भी पावर है. The High Court of the Gujarat is located on the Sarkhej Gandhinagar Highway, सोला अहमदाबाद. हमारे गुजरात की हाई कोर्ट कहाँ है? तो सरखेज गांधीनगर हाईवे रोड, सोला अहमदाबाद में. राइट. सो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? तो ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ कोर्ट. जैसे कि हाई कोर्ट के पास किस टाइप की अथॉरिटी है, किस टाइप के वर्क है, वो उसमें उनके ऊपर सुपरवाइज कर सकते हैं. जो भी वर्किंग डॉक्यूमेंट्स जो रेडी हो, जो अदर केसेस के ट्रिब्यूनल में होते हैं, तो उनके लिए भी वो डिमांड कर सकते हैं. अगर उनको ऐसा नेसेसरी लगे भी, उन लगे कि ये केस में हमें खुद देखना पड़ेगा, तो वो खुद देखता है. और हाई कोर्ट गाइड एंड डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द मैटर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एंट्रीज, एंड ऑल्सो follow the procedure and a functioning of the courts under its authority and its power. See, ये बहुत easy topic था. That's why I'm going to little bit in speed. Otherwise मैं speed में नहीं चाहती. Right? ये बहुत easy था. दो तीनों original jurisdiction, appellate jurisdiction and administrative jurisdiction of high court. ये तीनों हमने अच्छे से complete किए हैं. मेरी बोलने में speed है, explanation में नहीं है. सो ट्राई टू अंडरस्टूड परफेक्टली. ओके. अगर आपको थोड़ी स्पीड लगे तो आप स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो आपके फ़ोन में. ओके. सो नाउ आई होप यू आर क्लियर अबाउट द appellate jurisdiction, original jurisdiction and also administrative jurisdiction. Administrative jurisdiction is very very easy. वो जो फर्स्ट हुए उनकी कंपेयर में. So now you have 1 minute for read this administrative jurisdiction, and then we'll come to the subordinate courts. Okay, you just read it, and still अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना. मैं पूरा टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज भी करवाऊँगी और अगेन एक्सप्लेन भी करूँगी. हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ आ जाए तो आपको सेकेंड टाइम वीडियो देखना है. स्टिल अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे यूट्यूब में बोल सकते हो. मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपका जो क्वेश्चन है वो कवर कर लूँगी. ठीक है. सो नाउ इट्स योर टाइम. जस्ट रीड द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन एंड दिस सेकेंड पैराग्राफ, एंड देन विल कम टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सी, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, पेज नंबर 90 पे, 90 पे फर्स्ट, बट द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है. तो वो भी अच्छे से एक बार रीड कर लेना. ओके. जस्ट रीड इन स्पीड. थोड़े स्पीड इंक्रीज करो रीड करने में. और वेर इज गुजरात हाई कोर्ट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप्स और 1 मार्क में. एट सरखेज गांधीनगर हाईवे, सोला इन अहमदाबाद. ओके, डन. गुड. तो हमने टोटल आज किया फर्स्ट रिवीजन, जैसे हाई कोर्ट, देन फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट. Then we have learned in detail the original jurisdiction, appellate jurisdiction,
and administrative jurisdiction, right? And now the subordinate court. So, under the guidance and the supervision of High Court of any state, there are district and taluka court, fast track court, pota courts. What is pota courts? पता है किसी को? So, the Prevention of Terrorism Act 2002, that is POTA courts. The full form of POTA, Prevention of Terrorism Act. Okay. Then tribunals and certain special courts includes in subordinate courts. सी ये सब टाइप की जो कोर्ट्स है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि तालुका कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोटा कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल एंड अदर स्पेशल courts. Each state is divided into the administrative unit called district, consisting of the civil court, criminal court and revenue court. ये 3 टाइप्स के कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. क्लियर? सी सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है कि किस टाइप के कोर्ट्स इंक्लूड्स है उसमें. सो ये वी डन द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑल्सो. सो टोटल इन दिस चैप्टर वी हैड डन दिस पूरी जो सिस्टम है हमारे इंडियन जुडिशरी की एक पिरामिड फॉर्म में है. सो फर्स्ट हमने वो कंप्लीट की. देन जुडिशरी का इम्पोर्टेंट क्या है हमारी सिस्टम में. सो हमारे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं और इंडियन सिटीजन के जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये जो इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल जुडिशरी सिस्टम है बहुत एसेंशियल है, राइट. देन एपेक्स कोर्ट क्या है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट. एंड फर्स्ट जुडिशरी क्या है. जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड फर्स्ट 2 ऑर्गन वी हैव studied in chapter number 10th, that is legislative and executive. I hope you all remember that. Then there is the qualification required for becoming the judge of Supreme Court, right? So दोनों में सेम है कि भाई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट पे दोनों में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. बट इसमें 65 ईयर एज है, वेर एज इन हाई कोर्ट 62 years of age. Then 5 years judge in high court and in 10 years एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट. और इन हाई एंड और जो हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन हम देखें तो उसमें 10 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर है एज एन इन जुडिशियल पोस्ट इन लोअर कोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड एटलीस्ट 10 year ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट. और किसी ने माल प्रैक्टिस का मीनिंग पूछा है मुझे यूट्यूब का में. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माल प्रैक्टिस. सो आपकी जो ड्यूटी है, आप जो स्टडी आपने जो किया है, जैसे कि आप जज हो, राइट. तो आप जो सर्विस एज अ जज प्रोवाइड कर रहे हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप कोई अदर कोर्ट में एज अ जज सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर आप वो कर रहे हैं तो दैट इज़ द माल प्रैक्टिस. अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो तो एट दैट टाइम आप और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते रिलेटेड टू योर वर्क. जैसे कि आप कोई दूसरी कोर्ट में जाके एज ए जज सर्विस प्रोवाइड करो या फिर एज ए एडवोकेट प्रोवाइड करो तो वो माल प्रैक्टिस या मिसकंडक्ट में इंक्लूड होती है. सो क्लियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माल प्रैक्टिस. मीन्स आपकी जो ड्यूटी है वो आप ब्रेक कर रहे हो, दैट इज़ माल प्रैक्टिस. ओके, आई होप नाउ यू ऑल clear about the all topics which we have done in this chapter. So finally, here we done today's lecture, and in today's homework you write a short note of jurisdiction of High Court. So first original jurisdiction, appellate jurisdiction second, and the third one is the administrative jurisdiction. In each jurisdiction you should write 3 to 4 points at least. Okay. सो टोटल 12 to 15 पॉइंट्स हो गए तीनों के मिला के. सो आपको सिर्फ ये एक शॉर्ट नोट आज होमवर्क में लिखनी है और कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं है. सो ओके, क्लियर अबाउट द होमवर्क ऑफ टुडेज होमवर्क. ओके, सो गुड बाय एवरीवन.